अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पेट्रोलियम इंडस्ट्री। इससे पहले कि हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करें, सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, बेसिकली ये सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान में ड्यू टू द केमिकल एंड बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है। वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फर्दर इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है अपने अकॉर्डिंगली। So now, first of all, we'll see that petroleum is basically the fossil fuel, because anything that is under the sedimentary rocks is known as the fossil fuels. So petroleum is basically fossil fuels which is obtained by the decomposition of the organic matter in between the sedimentary rocks. Secondly, petroleum, we obtain petroleum in the form of crude oil which is black in color, and later on we refine it again and again to get pure petroleum, and it's all fractions. So now we have to discuss that petroleum also has different fractions. Fractions means petroleum में ऐसी बहुत सी useful constituents होते हैं जिसको हम अलहदा separately we can use them. So there are some fractions I have discussed here. First of all, natural gas is also a fraction of petroleum. Then petroleum ether, naphtha, gasoline, kerosene oil, lubricating oils and gas oils, paraffins which are alkanes are also the fractions of petroleum. So after these fractions, after knowing these fractions, we must know that how we can separate out these fractions. So this process is carried out by the fractional distillation. Fractional distillation is a technique on which we separate different components on the basis of their boiling points. This process has been this process mostly done in a long tower, and on the basis of difference in their boiling points, we separate all of the components and collect them, and after then condense as per demand. So now we are going to discuss the cracking of petroleum. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रैकिंग क्या होती है। व्हाट इज़ मीन बाय द क्रैकिंग? क्रैकिंग जैसा कि नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि क्रैकिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें first let me clear that petroleum contains different hydrocarbons. Okay, petroleum contains different hydrocarbons. These hydrocarbons are mostly long chain, and they are not as usable as we can make it well. Okay, so cracking is a process in which we break down heavier hydrocarbons into the lighter hydrocarbons to make them more feasible to use. Okay, so here I have mentioned breakdown of heavier hydrocarbons into lighter hydrocarbons by means of high temperature, pressure or any catalyst. जी बिल्कुल। क्रैकिंग का प्रोसेस 3 तरह से किया जा सकता है। सबसे पहला इसका तरीक़ेकार है कि हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करके भी क्रैकिंग कर सकते हैं। सेकेंडली, हाई प्रेशर के अकॉर्डिंगली भी क्रैकिंग हो सकती है। और थर्डली, अगर हम कोई सूटेबल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं देन क्रैकिंग मस्ट बी डन। ओके, these are 3 types of cracking: thermal cracking, first thermal cracking, secondly steam cracking, and thirdly catalytic cracking. So what is thermal cracking? Thermal cracking में हम हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। जैसे कि आपको नाम से ही ये जाहिर हो रहा है कि थर्म मीन हीट, सो वी प्रोवाइड हाई टेम्परेचर टू क्रैक और टू ब्रेक डाउन द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द पेट्रोलियम. Okay, the
temperature range must be almost about 500 to 1200 डिग्री सेल्सियस। इस रेंज में पेट्रोलियम के जो हायर या हैवियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्रैकिंग हो जाती है उनकी, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में आ जाते हैं जो कि हम उससे ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो कदरे बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट टाइप इज़ द स्टीम क्रैकिंग। सो स्टीम क्रैकिंग बच्चे, जैसा कि आपको पहले भी आइडिया है, स्टीम हम हीट से ही जनरेट करते हैं। बेसिकली ये क्रैकिंग की वो एप्लीकेशन है जिसमें हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात समझने की ये है कि स्टीम क्रैकिंग में होता क्या है, हम पेट्रोलियम के पूरे मिक्सचर को, पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन्स को हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। दिस टेम्परेचर रेंज मस्ट बी अबाउट 500 to 900, मोस्टली नॉट मोर देन 900। इस टेम्परेचर रेंज में होता ये है, पेट्रोलियम के तमाम वेपर्स टैंक के ऊपर जमा हो जाते हैं और वो वेपर्स उसकी अपर सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये प्रेशर ही, जब वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये प्रेशर ही उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प आउट करता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अंडर हाई प्रेशर बाय गिविंग हाई टेम्परेचर। सो पेट्रोलियम को हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं और हाई टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद उसके वेपर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये वेपर्स उसकी अपर सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिस प्रेशर की वजह से यहाँ पे स्टीम की बदौलत क्रैकिंग होती है। हाइड्रोकार्बन्स लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन से टूट कर ब्रेक डाउन होके वो स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच आर मोर ईजी टू यूज़। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि कैटालिटिक क्रैकिंग में हमें कोई भी कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है। कैटलिस्ट यूज़ करने से ही हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स और लाइटर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो ब्रेक डाउन बाय पासिंग सूटेबल कैटलिस्ट। सूटेबल कैटलिस्ट, हाइड्रोकार्बन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स डिफरेंट चेन लेंथ के होते हैं, तो उसके लिए सूटेबल का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि हर हाइड्रोकार्बन की चेन लेंथ के अकॉर्डिंगली उसमें डिफरेंट कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली 20 to 30 रेंज कार्बन नंबर ऑफ कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके लिए हम नॉर्मली कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एलुमिना, SiO2 एंड Al2 का मिक्सचर हम इसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये बात हमने जहन में रखनी है, जब हम कैटालिटिक क्रैकिंग कर रहे हैं उसमें भी हमें टेम्परेचर, समहाउ टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। सो टेम्परेचर रेंज मस्ट बी अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस। इज़ नॉट द एग्जैक्ट डिजिट, इट कैन बी वेरी अप टू 50 डिग्री सेल्सियस अप एंड डाउन, and pressure will be 2 atmosphere. So here is an equation that I have quoted that C16H34, this is a long chain hydrocarbon and we provided heat because we are going to do the cracking of with the same hydrocarbon. So C16H34 is a hydrocarbon. इसकी जब हमें क्रैकिंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हीट अप करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, रेंज नॉर्मली 20 to 30 नंबर ऑफ कार्बन्स तक हम मोस्टली उनको थर्मल क्रैकिंग के थ्रू ही उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे यू कैन सी 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स बन चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं C7H16 लाइक हेप्टेन, सेकेंडली इथीन के 3 मॉलिक्यूल्स बने हैं और थर्डली 1 प्रोपीन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। तो लिहाजा हमने हीट अप्लाई करके, बाय अप्लाइंग हीट, हमने इस लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को इन शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रैकिंग। So now, in more term, we must have to discuss in petroleum, that is reforming. Okay. First of all, we must know that what is reforming. So
Conversion of straight chain hydrocarbons into the branch chain hydrocarbons is known as reforming. So रिफॉर्मिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है, सवाल ये पैदा होता है। रिफॉर्मिंग बेसिकली हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें जितने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी उतनी ही लो होती है और उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही कम होता है। एक बात आपने बच्चों जहन में रखनी है, किसी भी पेट्रोलियम फ्रैक्शन का ऑक्टेन नंबर जितना लोअर होगा उतना ही उसकी क्वालिटी भी कम होगी, ठीक है। तो किसी भी पेट्रोलियम के फ्रैक्शन का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ करने के लिए, ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसकी रिफॉर्मिंग करते हैं। रिफॉर्मिंग इज़ द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच्ड। सो हियर इज एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्टेंट है विच इज़ एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इसको बाय रिफॉर्मिंग हमने अप्लाई करना है। हमने इसको टेम्परेचर कैटलिस्ट अप्लाई करके हमने इसकी रिफॉर्मिंग करनी है और इसको एक ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देना। यू कैन सी दैट हेयर 8 carbon are attached in straight chain, okay, and in straight chain I have already discussed that efficiency of petroleum is not much more good as compared to in branch chain. So ब्रांच चेन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसकी रिफॉर्मिंग की है ये हमारे पास 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में कन्वर्ट हो चुका है और ये एज़ कम्पेयर टू दिस वन ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर हमने यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ कर दिया है, हमने इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा दिया है। सो फर्स्टली हमें थोड़ा सा ऑक्टेन नंबर के बारे में भी देखना चाहिए कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। ऑक्टेन नंबर इज़ बेसिकली द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्यूल। ऑक्टेन नंबर इज़ बेसिकली द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्यूल। किसी भी फ्यूल की एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को हम ऑक्टेन नंबर का नाम देते हैं। तो इसके साथ ही बच्चों में पता होना चाहिए कि नॉकिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट इज़ नॉकिंग। सो अक्सर आपने नोट किया होगा, आपको खैर वो नहीं उसका आइडिया होता है पेट्रोल के एग्जैक्टली क्वालिटी का, बट सम टाइम हम नोट करते हैं कुछ व्हीकल्स के बर्निंग पे जब इंजन उनका स्टार्ट होता है उसकी बर्निंग पे उनमें एक बहुत मेटालिक सा साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। तो बच्चों दिस साउंड इज़ नॉन एज नॉकिंग। ये साउंड नॉकिंग कहलाता है। Metallic sound, production of the metallic sound is known as knocking. So अब नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे हैं। हायर द ऑक्टेन नंबर बेटर द फ्यूल, लेसर द नॉकिंग। ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा, ऑक्टेन नंबर जितना हायर होगा उसकी नॉकिंग उतनी ही कम होगी और नॉकिंग जितनी कम होगी उतना ही फ्यूल की क्वालिटी भी बेटर होगी, फ्यूल ज़्यादा बेहतर होगा। सो नॉकिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। नॉकिंग जब होती है मेटालिक साउंड फिट बेसिकली इंजन की पार्ट्स के दरमियान में जब ग्रीजी एजेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, ग्रीजी इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं तो पार्ट्स आपस में यू कैन से लाइक फ्रिक्शन उनमें प्रोड्यूस होती है। वो फ्रिक्शन हमारे सामने मेटालिक साउंड की तरह से हमारे सामने आती है और उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि हमारा जो इंजन है जिसमें हमारा फ्यूल बर्निंग हो रही है वो इंजन की एफिशिएंसी को लो करता जाता है। डे बाय डे इंजन की एफिशिएंसी कम से कम होती जाती है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिखी है TEL, दैट इज़ टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड इज़ बेसिकली द एंटी नॉकिंग एजेंट। ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है और नो डाउट पेट्रोलियम में जब हम इसकी कुछ अमाउंट पेट्रोलियम में हम ऐड करते हैं तो उसकी जो एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, लाइक नॉकिंग को रिड्यूस कर देता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो ये हैं कि जैसे ही ये
उसकी एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। मेटेलिक साउंड तो रिड्यूस कर देता है, लेकिन उसके बावजूद ये क्या करता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, जो एग्जॉस्ट गैसेस वहाँ से एलिमिनेट हो रही हैं, ये उनके साथ मिलकर वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और एयर पोल्यूशन काज करता है। बच्चों, इसमें ये हमने सारी पढ़ी है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। बच्चों, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और होपफुली आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।